Hello students, in today's video tutorial I'm going to explain you the concepts of testing metrics and testing tools. Okay, so what is testing? Testing metrics. Before starting with the testing metrics, let me take a look on the basic introduction corresponding or the basic terminologies to be used corresponding to the testing metrics. So as we know that in software projects it is extremely important to measure the quality, cost and effectiveness of the project and the processes. So without measuring these, project can't head towards the successful completion. So we know that whenever we have followed any kind of method, any kind of process, any kind of methodology, any kind of technology, so how we can evaluate it. So in case of software projects, it is extremely important to measure the quality, cost and effectiveness to verify whether we have followed the right process or the right method or not. So without measuring these, we cannot head towards the successful completion. So what are the parameters, what are the criteria to be used during we can say during the evaluation of software projects? So as correspondence to the testing metrics, अगर हम बात करें testing की, so what are the basic criteria or we can follow during the testing metrics? So before starting with the testing metrics, let me take a look on the criteria, that is in software terms, in the software technology terms, we can say that criteria is a measure. Now what is measure? A measure provides a quantitative indication of the extent, amount, dimension, capacity or size of some attribute of a product or a process. So we can say that what is a measure? Measure means it is a kind of parameter, it is a kind of quantitative we can say quantitative value through which we can identify the size, or we can say the dimension or the capacity corresponding to any kind of product or the process. So measure actually क्या है? measure एक्चुअल में एक quantitative indication है, एक value है जो ये बताती है जो कि हम किसी भी चीज़ को measure करने के लिए यूज़ करते हैं. Okay, so measure is actually a kind of quantitative indication corresponding to any kind of value relevant to the amount, dimension, capacity or the size. Okay, or we can say the combination of these attributes also. So just for an example, we can say kilometer, it is a measure. ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं या इवेल्युएट करते हैं. वैसे ही वॉल्यूम है. सिमिलरली अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें, सो सॉफ्टवेयर के टर्म्स हम कह सकते हैं एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोड्स. ओके, सो लाइन ऑफ कोड इट इज़ अ काइंड ऑफ मेजर, और वी कैन से फंक्शनल पॉइंट्स. अगर हम लाइन ऑफ कोड्स के बेसिस पर जज नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन एवेल्युएट इट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल पॉइंट्स बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज टू बी इम्प्लीमेंटेड करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्ट. ओके, द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सिमिलरली on the basis of measurement, on the basis of measure, we can say what are the steps or what are the ways or what kind of act we are actually performing to evaluate these measures called measurement. So measurement is the act of determining a measure. We can say that वो activities जो कि हम measure यानी कि इस parameter को identify करने के लिए जो हम activities perform करते हैं, जो हम activities follow करते हैं, these activities are known as the measurement. Okay, similarly what is metric? So as per the definition given by the IEEE, we can say that metric as a quantitative measure of the degree to which a system or that means it is relevant to a system, a component or a corresponding process possesses a given attribute. That means हम किस attribute के basis पर बात कर रहे हैं. metric actual में एक measure ही है.
बट ये किस तरह का मेजर है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है। जब हम मेट्रिक को एज अ क्वांटिटेटिव मेजर को एज अ क्वांटिटेटिव वैल्यू यूज़ करते हैं, एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज़ करते हैं, एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एज एन इंडिकेशन यूज़ करते हैं, सो वी कैन से दैट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट और अ प्रोसेस possesses a given attribute is known as a metric. So metric is nothing but it is a kind of measure. But what kind of measure it is? It is a quantitative measure. That means it is having a specific value corresponding to the process, corresponding to we can say a particular block of code, or we can say the component module, or it may be corresponding to the whole system. ओके, सो मैट्रिक एक्चुअल में क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि एक इवैल्यूएशन पैरामीटर है। सो मैट्रिक को अगर हम जनरलाइज टर्म में अगर डिफाइन करें तो हमें माइंड में सिर्फ एक चीज़ सेट करनी है कि मैट्रिक मतलब एक क्वांटिटेटिव मेजर, यानी कि एक क्वांटिटेटिव वैल्यू, एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस lectures also about the different phases of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सो जितने भी फेजेस हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ करते हैं, हर फेज़ में हम क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर फेज़ को इवैल्यूएट करने के लिए कि हमने वो फेज़ प्रॉपरली फॉलो अप किया है या नहीं। यानी कि हम एनालिसिस में भी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, हम डिज़ाइन में भी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं जिनको हम डिज़ाइन मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, इसी तरह से कोड मैट्रिक्स होते हैं। सिमिलरली जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के इवैल्यूएशन के लिए कि हमने टेस्टिंग प्रॉपरली इंप्लीमेंट की या नहीं, उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स बना के रखे हैं। उन्हीं क्वांटिटेटिव मेजर्स को हम बोलते हैं टेस्टिंग मैट्रिक्स। नाउ व्हाई वी नीड मैट्रिक्स, द नीड ऑफ मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या है। सो द क्वेश्चन इज वी कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट वी कैन नॉट मेजर। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे। दैट मीन्स वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू जो कि हमें स्पेसिफाई करे कि हाँ हमने ये काम इस लेवल पर किया। ओके, तभी तो हम इवैल्यूएट कर पाएंगे, हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ओके, सो वी मस्ट नीड मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पस। सो वी कैनॉट इम्प्रूव व्हाट वी कैनॉट मेजर। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम माप नहीं सकते, उसको हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। सिमिलरली वी कैनॉट कंट्रोल व्हाट वी कैनॉट मेजर। सो जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेजर ही है वो पैरामीटर, वो वैल्यू जो कि हमें कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो विदाउट मेजरमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर द प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इज इम्प्रूविंग और नॉट। सो अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि जब भी हम मेजरमेंट अप्लाई करते हैं, सो वी हैव सम पैरामीटर्स जिनको हम मेजर्स कहते हैं, उन पैरामीटर्स के इवैल्यूएशन को हम मेजरमेंट कहते हैं, और उसी के थ्रू हम ये चेक करते हैं, जब हम उस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं सो हम ये चेक कर पाते हैं कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया था वो प्रॉपर था या नहीं, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, या हम इम्प्रूवमेंट किस वे में करेंगे। सो मैट्रिक्स हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ एक्टिविटीज़, और इसी बेसिस पर जब हम डेवलपमेंट प्रोसेस में अगले फेज में जाते हैं, सो इसी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बेसिस पर ही हम एक्टिविटीज़ को हम ये जज कर पाते हैं कि नेक्स्ट या डिसीजन ले पाते हैं कि नेक्स्ट फेज में हम जब जाएंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी में जब जाएंगे, सो हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो अप करनी है। सो इट हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजंस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्टिविटीज़। सिमिलरली मैट्रिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ improvement required and helps in taking decisions on process or technology change. So we can say that these are the points which helps us to understand the actual process of development, okay, on the basis of metrics. So we can say that this is the need of metrics, why we need metrics. Okay, then फिर टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग मैट्रिक्स, क्योंकि हम अभी सिर्फ टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सो टेस्टिंग मैट्रिक्स क्या होंगे, यानी कि जब हम टेस्टिंग प्रोसेस या टेस्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो टेस्टिंग मेथड अप्लाई करते वक्त हमें वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना है, जिनके बेसिस पर हम अपने टेस्टिंग प्रोसेस को ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए। टेस्टिंग मैट्रिक्स यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स आर नथिंग बट इट डिफाइंस
a quantitative measure that helps to estimate the progress and quality of software testing process. जो भी हमने टेस्टिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई किया है, उसके प्रोग्रेस और उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को एवेल्युएट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स यूज करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स? सो हियर वी कैन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स इज important due to several factors. Okay, now what are these factors? That means what it says, software testing matrix की क्या importance है corresponding to the software testing process. Okay, so we'll have listed few of them below. What we can say, it helps us to take a decision for the next phase of activities. So what this first point says, this point says it helps us to take a decision for the next phase of activities. ओके, सो नेक्स्ट फेज ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उन एक्टिविटीज़ का जो डिसीजन है, उन एक्टिविटीज़ का जो आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है, वो किस पर बेस्ड हैं? वो सारी की सारी बेस्ड होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिसीजंस वी कैन, on the basis of these metrics, we can say that we can take decisions corresponding to the next phase of activities. यानी कि जब हम next phase में जाएंगे उसकी activities के decision के लिए. Okay, so it is the evidence of the claim or prediction. Okay, so on the basis of that we can say it is the evidence. ये proof है एक तरह का. जो metrics है, जो measures हैं, वही हमें बताते हैं. जब हम measure निकालते हैं या metric निकालते हैं तो उसी के corresponding ये values हमें ये बताती हैं कि क्या claim करना है और क्या predict करना है. Okay, मतलब claim और prediction जो है वो totally based होता है किसके ऊपर? मैट्रिक्स के ऊपर, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर हम टेस्टिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग मैट्रिक्स के ऊपर. ओके, सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड एंड देन it also helps us to understand the type of improvements. Now what kind of improvements that we actually required over the testing process? क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो we can say that जब हम implementation शुरू करते हैं टेस्टिंग का, जब हम टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि परफेक्शन आ जाए. सो ये जो इम्प्रूवमेंट होता है वो इम्प्रूवमेंट किस बेसिस पर होता है? जब आपने प्रीवियस प्रोसेस जो टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई किया था या प्रीवियस जो मेथड हमने अप्लाई किया था उसको हम फर्दर इवैल्यूएट करते रहें. यानी कि टाइमली पीरियडिकली अगर हम एक तरह का इवैल्यूएशन हम परफॉर्म करते रहेंगे, एक तरह का इवैल्यूएशन हम इवैल्यूएशन पैरामीटर यूज़ करते रहेंगे करस्पॉन्डिंग टू द टेस्टिंग प्रोसेस, so we can say that we can make the improvements. Okay, so it eases the process of decision making or technology change also. On the basis of that we can say it eases the process of decision making. और जो डिसीजन हमें लेना है अगले एक्टिविटीज़ के लिए या नेक्स्ट टाइम जब हम टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिसीजन मेकिंग्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेजर्स. सो दीज मेजर्स आर यूजफुल for the decision making or we can say the technology change. It eases the process of decision making. Similarly, why software testing metrics required? अभी इससे पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी why metrics required. Okay, now we are talking about why the testing metrics to be required. So why metrics in software testing? We can say that there will be certain questions during after the testing such as, अब हम बात करें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की. टेस्टिंग मैट्रिक्स की क्या ज़रूरत है? हम जो प्रीवियस स्लाइड में जो हम बात कर रहे थे वो मैट्रिक्स की नीड की बात कर रहे थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की. ओके, सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या होती है? सो सर्टेन क्वेश्चंस दैट विल अराइज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस. जब हम टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं जिनके आंसर्स हम तभी दे पाएंगे जब हमने मेजर्स यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स या क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पर हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल के रखी हों. ओके, यानी कि मैट्रिक्स बनाए हों. सो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू टेस्ट? ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले माइंड में आता है. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू टेस्ट? कितना समय लगेगा टेस्ट के लिए?
यानी कि आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम टाइम को डिफाइन कर पाए. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ बैड और गुड इज द प्रोडक्ट. that means it is relevant to the quality of product. okay, so टेस्टिंग प्रोसेस ही है वो जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आपने डेवलप किया है, फाइनली टेस्टिंग प्रोसेस के बाद टेस्टिंग मैट्रिक्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है. okay, so how many bugs still remain in the product? How we can identify it? Still again on the basis of the testing matrix कि कितने बग्स अभी स्टिल बचे हैं प्रोडक्ट में जिनको हमें रेक्टिफाई करना है या जिनको हमें अपने सिस्टम से बाहर करना है या जिनको हमें रिजॉल्व करना है. ओके, सो दैट मीन्स आफ्टर द टेस्टिंग प्रोसेस वी एज यू हैव रिमेंबर्ड दैट इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जब हम बात कर रहे थे टेस्टिंग प्रोसेस की, टेस्ट केस डिज़ाइंस की और फिर देन टेस्ट केस एग्जीक्यूशंस की, तो फाइनली टेस्ट डिलीवरेबल्स बनते हैं जिसमें हम रिपोर्ट्स बनाते हैं. ओके, सो टेस्ट केस जो डिलीवरेबल्स होते हैं उन डिलीवरेबल्स में से एक होता है आपका टेस्ट रिपोर्ट जो हम फाइनली एक रिपोर्ट बनाते हैं. ओके, सो हाउ मेनी बग्स स्टिल रिमेन इन द प्रोडक्ट, दैट वाज मेंशन्ड इन दी दैट डिलीवरेबल. जो फाइनली हम जो टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसी से हमें पता चलता है कि कितने कितने बग्स जो है स्टिल अभी प्रोडक्ट में बचे हैं जिनको हमें चाहे तो हम टेस्ट केसेस चेंज करके हम इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं या फिर हमें हो सकता है कि हमें अपने सिस्टम में ही कंपोनेंट में ही चेंजेस परफॉर्म करने पड़े. सो ये तभी पॉसिबल है जब हमने टेस्ट मैट्रिक्स को डिफाइन किया हो. सो वी कैन से दैट वी विल टेस्टिंग बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि ये भी एक मैट्रिक्स हम कह सकते हैं जिसके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो किस समय पर कंप्लीट होगा. विल टेस्टिंग बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, दैट मीन्स इट क्वेश्चंस वेदर वी विल कंप्लीट आवर टेस्ट ऑन टाइम और नॉट. ओके, सो ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस ये वो मैट्रिक्स हैं जिन या यूँ कहें कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब हम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे. ओके, सो व्हाट वाज द टेस्टिंग डन इफेक्टिवली. टेस्टिंग जो हमने टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई की है वो टेस्टिंग प्रोसेस हमने इफेक्टिवली अप्लाई की है या नहीं. देन हाउ मच एफर्ट वेंट इनटू टेस्टिंग द प्रोडक्ट, और कितना एफर्ट हमें लगेगा टेस्टिंग को प्रोडक्ट को टेस्ट करने में. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर विच वी नीड द टेस्टिंग मैट्रिक्स और द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स. मतलब अगर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब हम सॉफ्टवेयर टेस्ट मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे. पहला क्वेश्चन कि जब हम हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू टेस्ट को कितना समय लगेगा, इसके लिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. देन हाउ बैड और गुड इज़ द प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करना है तो उसके लिए आपको एक टेस्ट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. देन हाउ मेनी बग्स स्टिल रिमेन इन द प्रोडक्ट, आपको उसके लिए एक टेस्ट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितने बग्स अभी भी बचे हैं सिस्टम में जिनको हमें रेक्टिफाई करना है. देन विल टेस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, इसके बाद आपका टेस्ट क्या वाकई में समय पर कंप्लीट हो जाएगा, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना है. देन वाज द टेस्टिंग डन इफेक्टिवली, टेस्टिंग जो है वो इफेक्टिवली कंप्लीट होगी या नहीं, इसके लिए भी आपको एक पैरामीटर डिसाइड करना होगा जो टाइमली आपको एक इंडिकेटर हम कह सकते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर भी एक तरह का मैट्रिक्स होता है जो कि जिसमें हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दे देते हैं और जैसे ही हम उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करते हैं वो हमें इंडिकेट कर देता है वी आर ऑन द रॉन्ग साइड. तो हमें अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है. तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज नथिंग बट इट इज़ अ मैट्रिक्स. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से we need indicators. Okay, so how much effort and the last question is how much effort went into the testing product. so और कितना effort जो है हमें टेस्टिंग में लगेगा ये भी हमें evaluate करना होता है. तो वो तभी पॉसिबल है जब हम टेस्ट मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे प्रॉपरली. so we can say that this is the need of software testing matrix. Now what is the life cycle of software testing matrix. एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स का जो लाइफ साइकिल होता है
जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स बनाते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है, यानी कि वो जो पैरामीटर्स हम डिसाइड करते हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो हम बनाते हैं, जो मेजरमेंट क्वांटिटेटिव मेजर्स हम डिफाइन करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द टेस्टिंग प्रोसेस, उनका जो लाइफ साइकिल है, उन मैट्रिक्स का, उन मेजर्स का जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल कैसा होता है. सो वी कैन से दैट एनालिसिस, फर्स्ट द एनालिसिस ऑफ द मैट्रिक्स, देन कम्युनिकेशन, evaluation, and then आखिरी में उसके corresponding report. So you can see here this is the life cycle of testing metrics. Now one by one हम एक एक करके इन steps को, इन phases को discuss करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं analysis की. Now what is analysis? It is responsible for the identification of metrics as well as the definition. So what analysis actually defines? Analysis ये वो जो life cycle है, आप उसको confuse ना हो corresponding to the software development life cycle. It is not the software development life cycle. It is the life cycle corresponding to the testing metrics only. जो हम testing process apply करते हैं, उस testing process का एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा है टेस्टिंग मैट्रिक्स, और उस टेस्टिंग मैट्रिक्स की लाइफ साइकिल को डिफाइन कर रहे हैं हम. ओके, सो एनालिसिस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज द डेफिनेशन. यानी कि एनालिसिस के अंदर हम क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट मैट्रिक्स हमेशा सिमिलर हो, ये वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केसेस दैट वी हैव डिज़ाइंड. क्योंकि बहुत सारे टेस्ट मैट्रिक्स होते हैं, हम कौन से टेस्ट मैट्रिक को हम अप्लाई कर रहे हैं ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर और उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस पर. सो सबसे पहले हमें यही एनालाइज करना होता है कि कौन कौन से टेस्ट मैट्रिक्स जो हमें डिफाइन करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं, और जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे टेस्टिंग को जज करने के लिए, एवेल्युएशन के लिए. सो एनालिसिस इट इज़ द responsible for analysis is responsible for the identification of metrics as well as the definition. यानी कि हम एनालिसिस के अंदर कौन कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, उन मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो एनालिसिस प्रोसेस is all about the identification and the definition of metrics, or we can say the testing metrics used in during the evaluation of testing process. Okay, so next is communication या communicate. Now what it says, it helps in explaining the need and significance of metrics to stakeholders and testing team. Okay, then it educates the testing team about the data points that need to be captured for processing the metric. So on the basis of that communicate, what communicate says, because when we have completed this phase, or we can say the analysis phase corresponding to the metrics, जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन मैट्रिक्स को हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर देते हैं, तब हम यहाँ पर उन मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग जो सिग्निफिकेंस है, हम कह सकते हैं जो उसका पर्टिकुलर जो हम एप्लीकेशन है, जो यूज़ है उस मैट्रिक्स का, वो हम उस यहाँ पर डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर. वो इसलिए कम्युनिकेशन वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इसी के थ्रू हम उस मैट्रिक का के करस्पॉन्डिंग जो उसकी यूजेबिलिटी है वो हम डिफाइन करते हैं. किसको डिफाइन करते हैं? टू द स्टेक होल्डर्स, और वी कैन से द टेस्टिंग टीम. ओके, एंड इट एजुकेट्स द टेस्टिंग टीम, क्योंकि जब हम टेस्टिंग टीम को ये बताएंगे तो टेस्टिंग टीम इसी के बेसिस पर, ये जो हमने एनालिसिस किया है उसी एनालिसिस के बेसिस पर जो है टेस्टिंग टीम जो टेस्ट मैट्रिक्स हमने बनाए हैं उसके करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट्स को डिफाइन करती है. ओके, सो इट एजुकेट्स द टेस्टिंग टीम अबाउट द डेटा पॉइंट्स दैट नीड टू बी कैप्चर्ड फॉर processing the metric. Now the evaluation is, now what evaluation phase actually defines, it helps in capturing the needed data. और जब हम यहाँ डेटा पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं, डेटा पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिस बेसिस पर हमें ये वो कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली हम मैट्रिक्स में यूज़ करने वाले हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट we are making an evaluation criteria here. So evaluation is nothing but it helps in capturing the needed data. It also verifies the validity of the captured data and calculates the metric value. और उसी के बेसिस पर हम evaluation values या criteria को हम यहाँ define करते हैं.
देन अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, सो इट डेवलप्स द रिपोर्ट विद एन इफेक्टिव conclusion. It distributes the report to the stakeholders and developers, or we can say in towards the testing टीम्स. और इसी के बेसिस पर लास्ट में हम जो लाइफ साइकिल आता है टेस्ट मैट्रिक्स का, उसमें हम फिर फाइनली एक रिपोर्ट बनाते हैं और वही रिपोर्ट हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स और टेस्टिंग टीम्स को. सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेस्टिंग मैट्रिक्स. वी कैन से एनालिसिस, कम्युनिकेशन, इवेल्युएशन एंड रिपोर्ट. सो एनालिसिस में हम टेस्ट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पर हम डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. देन वी कैन आइडेंटिफाई द वैलिडिटी ऑफ द कैप्चर्ड डेटा विच इज़ कॉल्ड द इवैल्यूएशन. एंड देन फाइनली वी नीड टू डेवलप अ रिपोर्ट that we can share it, or we can say that we can distribute it among all the stakeholders, or we can say the developers and the testing team also. Now what are the various kind of software metrics to be used? Now these software metrics are the very first software metrics. We have several kind of software metrics, but I'm not explaining all of them, but corresponding to the set of these metrics, I'm taking just simpler kind of metrics over here, which is much more understandable. Okay, so we can say the very first metrics is defect acceptance. Defect acceptance, which is DA. Then what is the meaning of defect acceptance? So we can say, first of all we can see here the formula to be used for the defect acceptance. Now what is the formula? The very simple formula which actually represents the percentage of defect acceptance. Okay, what kind of defect to be accepted, the in percentage. Okay, so the percentage is nothing but the number of valid defects, यानी कि जो एक्चुअल में जो डिफेक्ट्स हैं, जो वैलिड डिफेक्ट्स हैं, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स टू बी आइडेंटिफाइड into 100 is going to be the percentage of defect acceptance. Now what is defect acceptance here? Estimation and improvement over the period. Similarly we can say we have defect acceptance in terms of how many defects are valid and what is the total number of defects. That gives the percentage of defect acceptance. So defect acceptance is nothing but it defines the percentage of acceptance of defects to be identified during the testing process. ठीक है, यानी कि डिफेक्ट कितने कौन कौन से वैलिड डिफेक्ट्स थे, उनके आधार पर जो वैलिड डिफेक्ट्स थे, आप देखिएगा यहाँ पर जो हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. ओके, सो जितने भी वैलिड डिफेक्ट्स हैं उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम बोलते हैं defect acceptance in the form of percentage. Okay, so defect acceptance criteria or metrics defines the percentage of valid acceptance of percentage of valid defects. Okay, so what is called the defect acceptance. Similarly the next matrix is, अगर acceptance की बात हो रही है तो defect rejection भी होगा. कौन कौन से defects हैं जिनको हम reject कर देंगे. Okay, so it is based on the number of defects rejected, कितने डिफेक्ट्स हमने रिजेक्ट कर दिए. ओके, और देन द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने थे, उनमें से कुछ हमने एक्सेप्ट किए थे जो कि वैलिड डिफेक्ट्स है, उसी के अकॉर्डिंगली जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं जिनको हमने हटा दिया है, जो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिजेक्टेड. ठीक है, जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमने रिजेक्ट कर दिए हैं ये उसके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है. सो जब हम, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देखिएगा ये जो हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ये किसको डिफाइन कर रहा है, जो भी हमने टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई किया उस टेस्टिंग प्रोसेस में डिफेक्ट्स आए, फॉल्ट्स आए, हमने उनको आइडेंटिफाई किया. अब हम उसके बेसिस पर हमने कितने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं और कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो कि जिनको हमें रिजेक्ट करना है. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो दो पैरामीटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं. एक बताता है कि वो कौन कौन से वैलिड डिफेक्ट्स हैं. ओके, वैलिड डिफेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना है, ताकि जिसके बेसिस पर हम एक्चुअल में इवैल्यूएशन करेंगे. क्योंकि वैलिड डिफेक्ट्स जो हैं, जो वैलिड डिफेक्ट्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम
हम कह सकते हैं हमारा टेस्टिंग प्रोसेस का इवैल्यूएशन होगा, लेकिन यहाँ पर हम जिन डिफेक्ट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने टेस्टिंग प्रोसेस तो पूरे सिस्टम पर अप्लाई किया है, सो जो डिफेक्ट्स रिजेक्ट हो गए हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते. ओके, सो इन द नेक्स्ट मैट्रिक्स वी आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्ट्स टू बी रिजेक्टेड. हम कौन से डिफेक्ट्स को रिजेक्ट करेंगे उसके परसेंटेज को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमने टेस्टिंग प्रोसेस में जितने भी डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें से वैलिड डिफेक्ट्स कौन कौन से और कौन कौन से डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं, जिन्हें हम रिजेक्ट कर सकते हैं. सो सिमिलरली वी कैन से दैट डिफेक्ट रिजेक्शन इज द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स that are rejected divided by the total number of defects given a percentage of the rejection ratio. ये कहलाता है रिजेक्शन रेशियो का परसेंटेज, वहाँ कहलाता है एक्सेप्टेंस रेशियो का परसेंटेज. ओके, सो दीज आर द टू मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द टेस्टिंग प्रोसेस. सिमिलरली अगर हम कोई और एक और मैट्रिक्स ले लें एग्जाम्पल के लिए, सो वी कैन से दैट वी हैव द अनदर काइंड ऑफ मैट्रिक्स टू बी हियर इज टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी. ठीक है, मतलब आपने जो टेस्ट को एग्जीक्यूट किया उस टेस्ट एग्जीक्यूशन की प्रोडक्टिविटी क्या रही है. सो उस टेस्ट एग्जीक्यूशन की प्रोडक्टिविटी को आप किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, वेरी सिंपल फार्मूला वी हैव. द टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन, आप किस बेसिस पर निकालोगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, TC executed which is called TE. okay, this TE nothing but it is the test case execution. This parameter is test case execution. Now that means how many number of test cases we have executed, हमने कितने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया. ओके, कितने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को हमने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि एक्चुअल में हम निकाल क्या रहे हैं, प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं अपने टेस्ट एग्जीक्यूशन की. जो हमने टेस्ट एग्जीक्यूट किया है उसकी प्रोडक्टिविटी किस बेसिस पर होगी, कि जितने हमने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए हैं और उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने में एफर्ट कितना लगा, जिसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन एफर्ट. नाउ हियर द एग्जीक्यूशन एफर्ट इन टर्म्स ऑफ हावर्स. ओके, यू कैन सी इट इज इन टर्म्स ऑफ हावर्स. सो वी कैन से दैट TE per hour is the test execution productivity. Okay, so with this formula you can see here we have to identify the total number of test cases to be executed. जो भी number of test cases हमने execute किए वो डिवाइडेड बाय उनको कितना समय लगा एग्जीक्यूट करने में. उन सारे, जैसे मान लीजिए मैंने 60 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया, उन 60 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए ओके मुझे कितना समय लगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, जो हम एक्चुअल में 8 आवर्स काउंट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 8 लिख रहे हैं. और उसके बाद अल्टीमेटली, क्योंकि हम टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोडक्टिविटी को एक दिन में तो टेस्ट केसेस सारे एग्जीक्यूट हो नहीं जाते हैं, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन डेज हमने यूज़ किए. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड द test execution productivity. Test case execution productivity is nothing but it defines the ratio between the number of test cases executed in an hour. Okay, so this is what we call the test execution productivity. Clear? Now the conclusion all about the test metrics is, test metrics actual में हम क्यों यूज़ करते हैं. So the test metrics should be reviewed and interpreted on regular basis throughout the test effort and particularly after the application is released into production. Then there are several key factors which is involved in the test execution definition. We can say there are several key factors in implementing and using the metrics in the organization, beginning with determining the goal for the developing metrics, followed by the identification of metrics to be tracked, and ending with sufficient analysis of resulting data to be able to make changes to the software development life cycle. So what we can say is that several key factors which is being used implementing and using the metrics in the organization. कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले
मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे? डेवलपिंग, वी हैव टू आइडेंटिफाई, डिटरमाइन द गोल। ओके, हमारा एम क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमारा गोल क्या है, ओके, हमारा पर्पस क्या है, पहले वो डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पर हम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मैट्रिक्स कौन सा यूज़ करना है जो जिसके थ्रू हम ट्रैक कर सकें और एनालिसिस कर सकें डेटा, जो रिजल्टेंट डेटा हमें मिल रहा है, ताकि जिसके बेसिस पर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर चेंजेस को परफॉर्म कर सकें। नाउ सो फाइनली मैट्रिक्स themselves so not create improvements, they do provide the objective information necessary to understand and what changes are necessary to be implemented. So metrics एक्चुअल में क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पर? metrics finally we can say that metrics themselves so not create improvements, metrics improvement नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने स्टार्टिंग में स्लाइड में भी बात की थी कि मैट्रिक्स ही है जिसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। मैट्रिक्स इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, मैट्रिक्स के थ्रू, मैट्रिक्स वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि हमें कब कहाँ किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, सो किसी भी प्रोसेस को अगर हम बात करें, कोई भी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा हमें एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसके अंदर, उस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। ओके, सो फाइनली वी कैन से मैट्रिक्स themselves सो नॉट क्रिएट इम्प्रूवमेंट्स बट दे डू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, बल्कि ये हमें एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, एक काम की इन्फॉर्मेशन देता है जो कि नेसेसरी है किसके लिए? टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी टू बी इम्प्लीमेंटेड, किस तरह के चेंजेस जो कि ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं उन इम्प्लीमेंटेशन पर्पस से, यानी कि इम्प्रूवमेंट पर्पस से। ओके, so we can say that this is all about the test metrics. Then with this slide I'm going to explain you the testing tools, the last topic corresponding to your syllabus of 4th unit. Testing tools, tools from a software testing context, we can say it can be defined as a product or that supports one or more test activities, right from planning, requirement creating, build, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट लॉगिंग एंड टेस्ट एनालिसिस। सो ये जो वेरियस एक्टिविटीज़ जो हम ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ये जितनी भी टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वी कैन से फ्रॉम द प्लानिंग ऑफ टेस्ट, ओके, देन what are the requirements of test process, then creating a build, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट प्लान बनाना है, टेस्ट प्लान के करस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस डिज़ाइन करना है और फिर उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। डिफेक्ट्स जो हो आफ्टर टेस्ट केसेस के करस्पॉन्डिंग आफ्टर एग्जीक्यूशन जो हमें टेस्ट डिफेक्ट्स मिलेंगे, उन डिफेक्ट्स को अगर हमें रिकॉर्ड करके रखना है, यानी कि उसकी लॉगिंग करना है, और उसके बाद फाइनली उसके बेसिस पर हमें टेस्टिंग प्रोसेस की एनालिसिस करना हो। हम इनमें से किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हों, हमें कुछ ऑटोमेशन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और वही टूल्स कहलाते हैं टेस्टिंग tools. So test tools from a software testing context can be defined as a product that supports these activities. Okay, now what is the role of various testing tools to be here? अब अगर हम बात करें टेस्टिंग टूल्स के रोल की, सो टेस्टिंग टूल का जो रोल है वो क्या है? ओके, so we can say that different types of testing tools are available today. Functions of such tools are briefly described over here. I'm describing on the basis of different types of testing tools, what are their roles. So अगर हम बात करें मैनेजमेंट टूल्स की, टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स की, तो टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स जो है वो क्या होते हैं और उनके थ्रू हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. सो टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स आर यूज टू मैनेज द एंटायर टेस्टिंग प्रोसेस. टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स जो है वो टूल्स होते हैं जो कि पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को मैनेज करने के काम आते हैं, एज इट नेम इम्प्लाइज. ओके, सो वन मोस्ट ऑफ दीज टूल सपोर्ट द एक्टिविटीज़. वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि टेस्ट रेलेवेंट हमें रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना हो तभी हमें टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. टेस्ट प्लानिंग के लिए अगर हम बात करें तब भी हमें टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. टेस्ट केस डेवलपमेंट के लिए, यानी कि टेस्ट केस डिज़ाइनिंग के लिए, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के लिए और उसके शेड्यूल बनाने के लिए. एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग करस्पॉन्डिंग एंड टू द जनरेशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट्स एज वेल. सो अगर हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. सिमिलरली अगर हम बात करें
डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स की, जो अनदर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं टेस्टिंग टूल्स हैं. ओके, so defect tracking tools are used to record bugs or defect detected during the testing process and keep a track of them until they get completely fixed. ओके, सो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स ये भी एक तरह का टेस्टिंग टूल के अंदर आता है, लेकिन ये एक्चुअल में किस तरह का टेस्टिंग टूल होता है, इसके थ्रू हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं. ओके, टेस्टिंग करने के लिए मैनेजमेंट टूल्स और रिकॉर्ड बनाने के लिए. वैसे ही अगर हम डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रैकिंग करने के लिए जो डिफेक्ट्स आए हैं उसकी लॉगिंग करने के लिए, जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले. ओके, लॉगिंग ऑफ डिफेक्ट्स. सो अगर आपको लॉगिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए हमें डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स आर यूज टू रिकॉर्ड बग्स और डिफेक्ट्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस, ताकि जो बग्स और डिफेक्ट्स आते हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस हम उनको ट्रैक करके रख सकें. ठीक है. Then automation tools record the actions performed on the software application being tested in a language it understands. ऐसे ही automation tools की ज़रूरत पड़ती है जो कि रिकॉर्ड्स को एक्शन या रिकॉर्ड करके रखता है उन एक्शंस को जो कि हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर ड्यूरिंग टेस्टिंग जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं. वैसे ही लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स होते हैं. लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स आर यूज टू, ये जैसे जैसे इनके नाम है, जो कैटेगरी ऑफ टूल्स आते हैं, जैसे जैसे नाम है वैसे ही इनका रोल होता है या वैसे ही ये परफॉर्म करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस वैसी ही होती है. सो अगर हम बात करें लोड टेस्टिंग टूल्स की, आर यूज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ कोड विच आर सीवियरली हैम्परिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, जो कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है. देन दीज टूल्स आर यूज टू मेजर द मैक्सिमम लोड विच the application can withstand before its performance starts deteriorating. सो लोड टेस्टिंग टूल्स जो है वो करस्पॉन्डिंग टू द जो भी हम मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना लोड बेयर कर सकता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोड टेस्टिंग टूल. और इसमें हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम मैक्सिमम कितना लोड बेयर कर सकता है या कितना लोड वो सह सकता है करस्पॉन्डिंग टू दैट एप्लीकेशन, और किस वैल्यू पर, किस थ्रेशोल्ड वैल्यू पर जाके उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होने लग जाएगा. परफॉर्मेंस स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग. ओके, so then the another kind of tool is code coverage tool. Now code coverage tools are used to measure the coverage of the test cases and to identify the gaps also. So the code coverage tool identifies the code which has not been run even once or the code which has not been tested while running the test cases. code coverage tool जो है वही मैंने कहा कि आप जो जैसा इनकी कैटेगरी है इन टूल्स की वैसा ही इनका काम है. code coverage tools are those tools which is used to measure the coverage of the test cases. उन टेस्ट केसेस को कवर करना जिनके थ्रू जब हम उन टेस्ट केसेस को अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से कोड्स हैं, उन कोड्स को आइडेंटिफाई करना उस कंपोनेंट में, उस मॉड्यूल में, उस प्रोग्राम में या उस सिस्टम के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, ऐसे कोड्स को आइडेंटिफाई करने का काम कोड कवरेज टूल्स का होता है. सो वी कैन से दैट दीज आर द रोल्स ऑफ टेस्टिंग टूल्स. सो टेस्टिंग टूल्स जो है वो मैनेजमेंट के भी काम आते हैं, ट्रैक करने के लिए, पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को ट्रैक करने के काम आते हैं, उसमें ऑटोमेशन के काम आता है, उसके लोड को टेस्ट या परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के काम आता है, कोड को कवर करने, यानी कि कौन कौन से कोड्स हैं जो स्किप हो रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस, उन कोड्स को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं. और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले टूल्स हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं. सो मेजर टूल्स जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं. सो दैट्स ऑल नाउ फॉर दिस वीडियो ट्यूटोरियल. For the references you can visit these websites or one of these websites, or we can refer these books also, okay, which is mentioned in your syllabus. Thank you.